Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Roxana Iqbal from Peshawar Model School, Nashara campus. Dear students, this is my lecture number 3 regarding your SVT for the month of June, grade 5. And the SVT for the month of June is from two chapters, unit number 3 and unit number 9. So the first 4 questions were from unit number 3, and we have discussed it in our last previous 2 lectures. Now this is my lecture number 3. In this lecture, unit number 9 is included. So first 3 questions from unit number 9, we'll discuss it today. First question is choose the correct answer. Number 2 is fill in the blanks, and number 3 is mark these sentences with tick or cross or true or false. So the answer of these questions or these objectives are on page 85 and 86. So let's start. This is your page 85 in your book. Now, first question is choose the correct answer. Which of these correctly define electric current? What is electric current? Which one is the definitions of electric current? So the first is that the flow of proton in an object, the flow of atom in an object, the flow of electron in an object, and the flow of neutron in an object. So option number C is the correct, the flow of electron in an object. Then number 2 is when an object gains electron, it is positively charged, it is negatively charged, remains neutral, and does none of above. Electron have negative charge. So if an electron gain electron, so it is negatively charged. Number 3 is an object become charged when. Charged मतलब उस पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ जाते हैं. सो वो कब होता है? व्हेन इट लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है सो इट गेट पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है सो इट गेट नेगेटिव चार्ज. So an object become charged when it loses or gain electron. Okay, option number A is correct. Then number 4 is if a material is negatively charged, it will. अगर कोई भी मटेरियल नेगेटिवली चार्ज होता है तो क्या, what happen? Attract a negative charge object, attract a positive charge object, repel a positive charge object, and none of these. We know that जैसे कि मैग्नेट में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो चार्जेस में भी सेम होता है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अट्रैक्ट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. देन द लास्ट वन फ्रॉम चूज द करेक्ट इज लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लाइटनिंग जो आसमान पे बारिश के दौरान बिजली जो चमकती है, सो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पर गैदर होती है इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो लाइटनिंग भी जो है वो एक जगह पे इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है वो एक जगह पर जमा होने की वजह से जो है वो लाइटनिंग होती है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1 is the flow of electron in matter is called electric current. इलेक्ट्रॉन की किसी भी चीज़ में मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो क्या आएगा इस ब्लैंक में? इलेक्ट्रिक करंट. नंबर 2 है द बिल्ड अप ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अभी मैंने आपको समझाया कि किसी भी सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जमा हो जाते हैं तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो नंबर 2 में क्या आएगा? स्टैटिक. नंबर 3 इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लो फ्रॉम द.
किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है, क्योंकि करंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो in an electric current circuit, the current flow from the negative to the positive terminal. स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने एक ब्लैंक दिया हुआ है और दूसरा ब्लैंक जो है वो मिसिंग है. सो यू विल राइट फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो उसमें मूवमेंट होती है. Then number 4 is material which allow electric current to pass through them easily are called conductors. ये क्लास 4 में भी आप लोगों ने पढ़ा कि जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें पास नहीं हो सकता उनको इंसुलेटर कहते हैं. सो नंबर 5 है मटेरियल्स विच डू नॉट allow electric current to pass through them are known as insulator. Then number 6 is all matter is made up of tiny particles called atom. जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं और इन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एटम्स. देन लाइटनिंग इज काज्ड बाय, ऊपर भी आपका आया हुआ है, लाइटनिंग इज काज्ड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके. देन पेज नंबर 86, the remaining fill in the blanks on page number 86. When the number of electron in an atom is equal to the number of proton, the atom is said to be neutral. जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, मतलब एक में भी दो है, पॉजिटिव भी दो है और नेगेटिव भी दो है, तो जाहिर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या बैलेंस करेंगे और फिर हम उस पार्टिकल को जो है वो हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं. Number 9 is when an atom loses electron it becomes positively charged. जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सो अगर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम रह जाती है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. एंड व्हेन इट्स गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. जब इलेक्ट्रॉन मज़ीद उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है या दो आ जाते हैं या जितने भी, सो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. देन लास्ट क्वेश्चन इज मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. ओके, सो नंबर 1 इज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनदरली पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. सो इट इज़ wrong, it is false. Then number 2 is if some electrons are removed from an object, the object becomes negatively charged. जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. नंबर 3 इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन इंसुलेटर. जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको इंसुलेटर कहते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. A spark is an example of electric current. Spark is an example of an electric current. This statement is true. ठीक है. And atom is, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और स्पार्क में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इस वजह से उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. एंड एटम इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ़ इट हैज़ मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन. अगर हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होता. जब दोनों सेम होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते हैं तब हमारे पास पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो रॉन्ग. आई होप यू अंडरस्टैंड. These were the 2 questions. Now in next lecture we'll discuss, the next lecture will be our last lecture. Okay, so inshallah we'll meet again with question number 4. Till then, Allah Hafiz.